Hello everyone. So this is me Vaishnavi again. I am studying in final year BTech from College of Engineering Pune. She is my friend. She is my roommate also. She's also studying in final year BTech. She recently got placed in a ZS Associates as a decision analytics. So hi Priya. Hi everyone, it's nice to be here. So Priya, just आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बेसिक वाला. Yeah. So my name is Priya Dhakulkar and I'm proper from Nagpur. For now I'm doing my BTech, final year BTech in production engineering at COEP. और recently I got placed in a company called GS Associates where my role is Decision Analyst Associates as a DAA. Okay. So एक ZS है जो एनालिटिक्स वाला काम करती है. तो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डन. अच्छा, so it is a service based company, so एक consultancy firm है. तो the clients come and it is mainly focused on the pharmaceutical area. और मेरा रोल उसमें ऐसा है कि mainly focused on analytics, Python, इन सब में ज्यादा focused है. So data को process करना और उसके ऊपर then analytic करके to come up with the right solution. It's basically it's been 1 month I'm doing my internship here. So अभी तक इतना सब समझा है. How's the experience? Like how's the work culture? It's really amazing. Like it is well known that यहाँ पे working hours बहुत long होता है. It's normally said that, but इतना अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं है. अभी बात है. हाँ. So 1 month orientation हुआ है. So now अभी सबको अपना अपना project मिला है. Okay. So my project is supply chain and manufacturing. So Nice. So प्रिया, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? लाइक 10th में कितने परसेंटेज चाहिए, 12th में कितने चाहिए और अपना CGPA कितना चाहिए, ये बता सकती हो क्या? Normally 10, 12, 70% above is done good. जब ग्रेजुएशन का वक्त आता है, सो हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था कि तुम्हें पता होगा कि पहले 7.5 CGPA रखा गया था क्राइटेरिया. बट देन उसके बाद उसको ऐसा नीचे करके 7 CGPA कर दिया गया था. बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई विल श्योरली रिकमेंड टू बी अबव 7.5 CGPA. Yeah, so guys, just remember that to keep your CGPA about 7.5 because it's mandatory for all those almost companies. People who say CGPA does not matter, they are biased. Yeah, it's actually matters a lot. It matters a lot. कई कंपनी में होता है ना, एप्टीट्यूड रहती है, इंटरव्यू रहता है, तो वो प्रोसेस क्या थी आपके? GS में बहुत, मुझे लगता है कि बहुत स्टेजेस थे. सबसे पहला था एप्टीट्यूड टेस्ट. सो इट्स बेसिकली जैसा नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, नंबर से रिलेटेड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब था. द फर्स्ट एप्टीट्यूड तो तुम जनरल किसी से भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो, इट्स वेल एंड गुड. सेकंड जो था वो कम्युनिकेशन टेस्ट था. सॉरी टू इंटरप्ट. वो फर्स्ट जो था उसका टाइम कितना था? लाइक 50 मिनट्स, 60 मिनट्स ऐसा? 1 घंटा तो अप्रोक्स था शायद, जितना याद आता. 60 मिनट्स. ओके. बट मैंने जितना तब ऑनलाइन भी पढ़ा था, सो इट डिफर्स. ऐसा सॉलिड नहीं है कि 1 घंटा. इट्स बट नॉर्मली अराउंड दैट टाइम. इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट रोल्स. हम ये कह सकते हैं, राइट? हाँ. और सेकंड राउंड वाज कम्युनिकेशन राउंड. तो इसमें ऐसा था, या हम दोनों भी थे ना वहाँ. हम दोनों ने दिया था. सो वो ऐसा था कि they mainly look how your pronunciation is, how good are you in vocabulary. So उसमें ऐसा ही था कि तुम्हें एक टॉपिक दिया है, तुम्हें 1 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बोलना है. फिर एक सेंटेंस दिया है, उसको पढ़ के बनाना है, मतलब रिकॉर्ड करना है. I think the key here is to be confident and थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ तो it's okay, but you should be confident. और अगर जब वो टॉपिक देते हैं ना, तो उसके बाद हमें 1 मिनट दिया जाता है for thinking. After that you need to talk about that something. Okay, yeah. Again उसके बाद कौन सा राउंड था? So every stage here is elimination round. मतलब aptitude के बाद ऐसा नहीं है कि सभी जाता है. So people get eliminated with the stages. So if you pass the communication test, then you go for a case study round. So ऐसा होता था कि case study round में पहला जो है theoretical है, मतलब it feels like you are giving an online test. They have something 2 questions but they are very vast. You have to really think about it. First 2, that is aptitude and communication, एक बार में लगता है ठीक है हो जाएगा. But case studies where you really have to think about things. And ऐसा था कि वो होने के बाद लिस्ट आई है
और ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का टाइम है, ये सब ऐसे फट फट हो रहा है। लाइक मुझे याद है सुबह मॉर्निंग 7 बजे की टेस्ट थी हाँ। और 9 बजे हमारा इंटरव्यू था शॉर्टलिस्ट तो इतना छोटा टाइम पीरियड होता है। हाँ, और ये सब लाइक एप्टीट्यूड राउंड का। हाँ। उसके बाद कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हुए और वो इंटरव्यू के लिए गए। राइट। सो केस स्टडी के बाद भी जिन्होंने अच्छा दिया केस स्टडी, वो केस स्टडी इंटरव्यू के लिए गए। सो आई थिंक हियर व्हाट इज द मेन थिंग इज कि जब भी तुम केस स्टडी वाला जो राउंड दो उसमें पीडीएफ अटैच करने का एक होता है, वो करना ही चाहिए। बहुत ऐसे लोग बोलते थे कि जिन्होंने कुछ भी करो, आंसर भी नहीं है ना, वो क्वेश्चन लिख के भी वो सबमिट कर देना चाहिए कि मतलब बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि जिन्होंने वो पीडीएफ सबमिट किया है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सिर्फ पीडीएफ, लाइक अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन का भी अगर गिवन भी करके लिख दिया ना, बट उसको ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, अटैचमेंट देनी चाहिए वो क्वेश्चंस के साथ। तो मुझे ये बताओ कि आपने बोला जैसे फर्स्ट 2 राउंड्स वाज क्वाइट इजी, थर्ड राउंड हार्ड होता है थोड़ा सा, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड एंड कि हमें, आपको क्या लगता है हमें कहाँ से प्रिपेयर करने पड़ेंगे वो क्वेश्चंस? YouTube इज द बेस्ट सोर्स। मतलब वहाँ पे मैंने तो YouTube से पूरे केस स्टडीज पढ़े थे जीएस एसोसिएट्स में क्या क्या होता है। गाइस, आई एम अटैचिंग द YouTube लिंक इन द बिलो सेक्शन, या प्लीज। एंड बट अगेन जैसे YouTube में है वैसे ही नहीं थे वो, इट इज वेरी मच डिफरेंट, बट स्टिल एक आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सो मेरा वाला हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इट वाज समथिंग रिलेटेड टू क्लाउड किचन डिस्ट्रीब्यूशन, कि तुम एरियाज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो इफ यू थिंक हार्ड और वो थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट हो गए तो वो इट इज सॉर्टेड हो जाता है। अगर आपका मैथ्स और लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा बहुत भी अच्छा होता है तो वो क्लियर हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद वाली स्टेप्स लाइक इंटरव्यूज, राइट? हाँ। सो इसी के 2 घंटे बाद एज यू सेड कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना के वो केस स्टडी राउंड हुए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था। सो इंटरव्यू वाज मेनली फोकस्ड ऑन ऐसे गेस्टिमेट्स थे एंड रिडल्स थे, एंड बहुत से लोगों ने तो वो केस स्टडी लिख के भी लाई थी। मैंने ऑन पेपर मतलब एक रेफरेंस के लिए अच्छा होता है। एंड आई थिंक सबको वो करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जीएस का वही है कि वो केस स्टडी और जो एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा पूछने के चांसेस है उनके। तो वो एक बार के लिए अपना हैंडी रखना इज वेरी नाइस। सो ऑल्सो कि उसके ऊपर और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो केस स्टडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अलावा भी आपको एक पूरा थोरो आइडिया होना चाहिए व्हाट इट इज अबाउट। एंड गेस्टिमेट्स एंड रिडल्स ये सब पूछते हैं। तो प्रिया, आपने ये गेस्टिमेट्स कहाँ से किए थे? लाइक यूट्यूब इटसेल्फ? यूट्यूब और ऑनलाइन सोर्स। और सम पजल्स भी थे ना शायद से? हाँ, पजल्स थे। मुझे एक ये भी पूछा था जैसे as a simple question that ABC plus ABC is equal to BBB है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी फॉर एग्जांपल ऐसा। एंड गेस्टिमेट ऐसा था कि इस रूम में टाइल्स कितने होंगे। ओके। तो इस टाइप तो ये भी एक डिसीजन लेने का ही तरीका है, लाइक रूम की कितनी स्क्वायर फीट होंगी तो कितने साइज का एक स्टाइल होगा, फिर कितने बैठेंगे ऐसा। The exact thing is तुम अप्रोच तुम क्या ले रहे हो वो बोल के बताना है बस। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें अप्रोच बताना है थिंग का। That's it. So this is first round, technical round. Yeah, this is first round based on case studies plus guesstimate as puzzles. Yeah. So it's how much time it will take? Like, okay, for my case, like in our college, it was roughly around 30 minutes to 45 minutes for each one. Okay. And the second round is, I think, the managerial or HR round. Okay, in that case, so after you like हमारे इसमें approx 20 लोग वगैरह थे। Okay. And जिसके लिए HR में 12 लोग वगैरह गए होंगे, I guess. Okay, only 3 elements. I think it was roughly around 30 ऐसे 25-30 थे, and HR के लिए 15 लोग वगैरह हुए। Okay. Then HR मेरे इसमें फिर ऐसा क्वेश्चंस थे स्टैटिस्टिक के रिलेटेड थे थोड़ा, एंड देन दे आस्क्ड मी कि तुम्हारा मेजर किस में हुआ है, दैट इज योर ब्रांच। सो फिर थोड़ा ब्रांच से भी थोड़ा सा रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछा जो कि एनालिटिक्स से रिलेटेड है। ओके। सो फिर स्टैटिस्टिक के बारे में पूछा कि इसमें मीन क्यों लगेगा, इसमें ऐसा डेटा है तो तुम क्या यूज करोगे। एंड देन
एंड देन मुझे एक पेपर दिया एंड उन्होंने बोला कि तुम्हारा आज का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, वो लाइक मेरे तुम्हारे पास 2 मिनट है, वो लिख के बताओ। तो क्या So, लिखा? मैंने लिखा था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले जितने भी इंटरव्यू होते थे हाँ, हमें वो- बहुत बिठा के रखना था, राइट? Yeah, we face Yeah. that. तो इसमें बराबर टाइम से सब हो गया था, इतने राउंड्स होने के बाद भी दे मतलब That's- कुछ घंटों में हमको छोड़ दिया था कि इट इज डन करना है। Nice. सो आई सेड कि ये अच्छा है। और मैंने एक कहा था कि जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने एक आंसर बताया था एंड सर मुझे ऐसे ये कर रहे थे कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर टू इट, आपको ढूंढना है, ढूंढो, तो अच्छे से देखो। तो मैं तो सोच रही थी सर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो बोल, तो मैंने उसमें लिखा था कि हाउ वन क्वेश्चंस हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो आई थिंक वो थोड़ा रेलेवेंस हो गया। ओके, तो हमें ये भी करना पड़ेगा, लाइक एक क्वेश्चन हमें इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो हाँ। उसको छोड़ना नहीं है, उसको उस पर डटे रहना है जब तक आपको सच में नहीं आता। वो इंटरव्यूअर होते वो आपको हिंट देने के लिए रहते हैं, लाइक थोड़ा थोड़ा हिंट तो देती ही है वो। हाँ। वी नीड टू गो टिल दैट आंसर, बस इतना ही करना है इंटरव्यू में, दैट्स द मेन थिंग। So Priya, now we are coming towards the some technical stuff. Okay. Have you gone through any technical language like C, Python वगैरह before? ऐसा सच बहुत डीप नहीं, बट फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में हमें दिए था डेटा एनालिटिक्स, Okay, थर्ड ईयर में, yeah. एंड फर्स्ट ईयर में हमें पाइथन सिखाया था। सो आई हैड मेजर आइडिया अबाउट हाउ लॉजिक, मतलब मेन लॉजिक क्या होता है कोड लिखते समय। बट ऑल्सो द केस इज फॉर द कंपनी लाइक CS एसोसिएट्स, उनका ऐसा था कि अगर तुम्हें आता भी नहीं है दैट इज गुड, मतलब हम तुमको सिखाने वाले ही है वैसे भी। सो देयर मेन फोकस इज कि डू यू हैव दैट एबिलिटी टू grasp like things. grabs the things, and how your logical thinking is, how much it's strong, it will be strong. Yeah, so mainly तो यही था उधर। Okay. And that was how my interview went, and उसके बाद ऐसा था कि from that 15 of us 9 got selected after the And Priya is one of them. So Priya, हमें अब बताइए कि what are the projects and some of internships have you done before? अच्छा, Yeah. तो in after third year that is summer internship, तो मैंने समर इंटर्नशिप किया था, बट इट वाज नॉट इन दिस सेक्टर, मतलब मेरा कोर ऑटोमोबाइल में किया था। सो विच लेड मी टू डिसाइड कि क्या नहीं करना है। कोर में नहीं करना है। तो एक वो इंटर्नशिप किया था। अदर देन दैट मैंने प्रोजेक्ट किया है विच वाज आल्सो इन कोर। वन वाज इन सेकंड ईयर एंड वन वाज इन थर्ड ईयर। But I think there is another project which is related with the DA, right? DA, हाँ, हाँ वो Data analytics. यस, वो हमने थर्ड ईयर में ही किया था। तो उसमें इट वाज नॉट अ वेरी मेजर प्रोजेक्ट, हाँ, बट या वो कर्व्स थोड़े समझ में आ गए थे। हाँ, that's वो important है actually. वो है इधर एक्चुअली हम वही करते हैं, ग्राफ्स वगैरह Data हमने जो analytics. बनाया था हाँ. ये सब करके। So what are the technical skills which are required? ओके, There are some like SQL, Yeah. MS, OS, like that. for DA, for my role, the things they concentrate mainly is Python, Excel, Power BI, and SQL. Okay. And Tableau वगैरह is additional thing you can have with you. Okay. But these are the 4 basic things you should know. मतलब इसमें अगर तुम अच्छे हो Python वगैरह तो you can easily sail through it. Okay. So we can study it from YouTube also. Yeah, Right. definitely. But if the role is BTSA ना, so you वो technical question बहुत ज़्यादा पूछता है. So then Python वगैरह ये सब आना is very important. DSA, yeah. DSA, हाँ DSA तो बहुत okay. Also for BTSA they only allow like CS, ENTC, like circuit branches I think. हाँ हाँ. And for DA all branches are open. So Priya, मुझे एक बात पूछनी थी कि हाँ. why you wanted to shift yourself from your core to technical thing? Okay. So as I said, internship was my major. मतलब तब समझ आ गया था मुझे कि this is not somewhere I can contribute a lot. Right. So I need to shift it. And also when I am here ना, मतलब अभी internship चल रहा है. So I think this is the thing I can do. ऐसा मुझे फील इंटर्नशिप जब मैं ऑटोमोबाइल में कर रही थी तब बिल्कुल नहीं आ रहा था. सो आई थिंक दैट वाज द रीजन. हाँ, आई मस्ट से कि इंटर्नशिप करो. हाँ, करनी चाहिए. करनी मतलब चाहिए. तुमको ये तो भी आइडिया आ जाता है कि तुम किस टाइम में तुमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. समर इंटर्नशिप तो करनी ही चाहिए. और एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या नहीं कर सकती. दैट्स व्हाई यू नीड टू डू इट.
another question is, when you start the preparation? ओके सो आई मतलब ऐसा साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन तो चल ही रहा था हमारा तो मंथ वाइज हाँ, जब मंथ से- बिफोर चल रहा था. थर्ड ईयर खत्म हुआ तब से तो ये सब स्टार्ट हो जाता है बट आई सीरियसली स्टार्टेड इट लाइक 4 अक्टूबर को रिजल्ट आया था इंटरव्यू का एंड मेनली मैंने जब भी ये कंपनी आई कि ये कंपनी आने वाली है आई स्टार्टेड रीडिंग हाउ एग्जैक्टली द एग्जाम पैटर्न आर सो मैंने बहुत विविड स्टडी किया था ड्यूरिंग दोज डेज कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं व्हाट शुड आई स्टडी सो आई थिंक इफ यू इवन पुट इफ यार तुमको कुछ नहीं आता है पाइथन वगैरह तो ठीक है यू हैव सम बेसिक स्किल्स बट इन 10-15 डेज अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो इट्स गुड अच्छे से पढ़ाई मतलब यू कैन रेफर यूट्यूब. हाँ मतलब वो यूट्यूब इज द बहुत- बेस्ट सोर्स है और कुछ बहुत चाहिए ज्यादा नहीं source है है. हाँ, उससे हो जाता है. तो बिफोर अगर आपके कैंपस में आ रही है जीएस तो ये करना पहले 15 डेज रेफर ऑल द यूट्यूब सोर्सेज. Yeah, definitely. सो प्रिया, कि आपको क्या लगता है अगर इस रोल के लिए हमें आगे जाना है, लाइक हमारे कई व्यूवर्स होंगे जो उसके लिए अपियर होने वाले होंगे, तो विच काइंड ऑफ स्किल्स वी हैव Okay, लाइक जो जरूरत सेफर है- साइड, या सेफर फॉर द सेफर साइड. Firstly तो ये है कि CGPA Yeah, CGPA that's रखो the most क्योंकि important अगर वो thing. CGPA क्राइटेरिया नहीं होगा तो आगे की बात ही नहीं होगी Yeah. सो CGPA सेफर साइड में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस भर भर के चाहिए मेरे केस में यही हो रहा था कि आई डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. मेरे इसमें ही आ रहा था, मुझे पता चला एट द एंड फिर हाँ, थोड़ा मैंने. वही हाँ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसा बहुत भी होगा कि कोई कोई कंपनी में शायद नहीं होगा बट एट द एंड हो जाता है हाँ, बट वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए होना चाहिए. और कभी नेगेटिव थिंकिंग मत करना. हाँ दैट्स द थिंग. and also it reflects on the way you speak right in interviews वगैरह Yeah. so second thing is self confidence and third is communication skills भी बहुत important है for the company like this वो क्योंकि client से बात करना होता है so they check that how you really speak and handle your like body language ओके. सो लाइक आप कुछ क्लब्स में थे इन कॉलेज कि आप इम्प्रूव करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और एनी अदर एक्टिविटीज? मैं डेप्थ ऑफ में थी मतलब डिबेट सोसाइटी which is I was in Hindi section not in English Yeah, but and also in sports हाँ उन्होंने मुझे पूछा था कि तुमने कॉलेज में क्या क्या किया है so मैंने बताया था कि आई एम अ पार्ट ऑफ चेस करके so फिर मैंने ये हर इसमें इंक्लूड किया है that chess has helped me to think and so they're like okay नहीं, चेस एक्चुअली हेल्प करता है हमें. Yeah. और एक लास्ट क्वेश्चन कि हाउ यू लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, लाइक मैसेज टू एवरीवन यू नीड टू गिव. so if you are going to give CS and trying to attempt CS test so अगर मैं step wise जाऊँ तो aptitude में basic aptitude हर ऑनलाइन साइट से ये सब इंडिया बिग से वगैरह यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लो कैसे आते हैं सीएस में The aptitude was easy. या Yeah, यू कैन it's- गो थ्रू इट तो वो बेसिक एप्टीट्यूड उसमें ठीक है हाँ. सेकंड कम्युनिकेशन टेस्ट में कॉन्फिडेंस से बोलो और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एक बार देख लो यूट्यूब पे एंड क्वेश्चंस जैसे हमने बताया इसे कोई भी जैसे एक था कि माय ड्रीम हाउस 1 मिनट सोचो उस पे बोलो तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं हाँ, माय ऐसे पेट पे बोलो हाउ आई स्पेंड माय वीकेंड्स ऐसे सब क्वेश्चंस होता है सो उस पे 1 मिनट बोलने का ऐसे टॉपिक इम्प्रॉम्प्टू वो ट्राई करो केस स्टडी में एक दो तीन वीडियो भी देख लिया यू विल हैव एन आइडिया और अटैच करना मत भूलना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हाँ है. एक्सेल में ऐसा कुछ तो करके डाल देना चाहिए इट इज वेरी गुड थिंग अगर वो पास करना है तो केस स्टडी और वो उसके नोट्स बना के इंटरव्यू में भी लेके जाना वो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना मोस्टली हाँ. ना, उसके रिलेटेड पूरा, क्वेश्चंस हाँ. पूछ सकता है. और एस्टिमेट्स कर लो देन एंड रिडल्स थोड़ा सा देख लो आई वुड सजेस्ट गेस्टिमेट्स के लिए और पजल्स के लिए गिग्स फॉर गिग्स हाँ बेस्ट ऑप्शन. यस You should- you should prefer this. और जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब की केस स्टडीज यस आ जाता है Okay. एंड एचआर के लिए तो फिर तुम्हारे वीकनेस ये सब पूछता है स्ट्रेंथ क्या है वो जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वन ऑफ द इंसिडेंट्स ये सब सो इट्स डन अंडरस्टूड देन guys, if you have any doubt related with the interview process or the questions asked in the interview, just comment down below or just text me on Instagram. Thank you so much.